Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social and political life class 6. Okay, and students, chapter number 7 we have to read today, and chapter number 7 page number 62. All right, we have to start from page number 62, and this is video third of this chapter. All right students, video third. Okay, so let's start. Said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Ganga Bai. All right, तो माला ने कहा कि वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली, लीड करने वाली, नेतृत्व करने वाली गंगा बाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed and Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Khala for answering their questions, and then, before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala. The two dustbins that we have at time now, are they also Gangabai's idea?" The children enjoyed hearing Gangabai's stories immensely. तो सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया. दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई. उन्हें अब इसका आभास तो हो ही गया था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे. They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left. सो सभी बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया. किसका? यास्मीन खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए. और जाते जाते रेहाना ने कहा, जाते जाते दे गॉट अप थैंक खाला एंड आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रेहाना सेड, तो जाते जाते रेहाना ने कहा, "Oh, I have one last question, Khala. The two dustbins that we have at home, now are they also Gangabai's idea?" तो उन्होंने, रेहान ने फिर पूछा कि खाला, बस एक आखिरी सवाल और है. घर पर अभी जो दो कूड़ेदान हैं, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव है? Now, the two dustbin that we have at home, now are they also Gangabai's idea? तो उन्होंने कहा कि खाला, क्या घर पर अभी जो दो कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. When we sort our own garbage, it reduces their work. So Khala began laughing. फिर खाला हंसने लगी. And no, not really. और बोलने लगी कि अरे नहीं. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. तो वे कहती हैं कि यह तो दो डस्टबिन रखना, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी अदर चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें. तो वे कहते हैं टू हेल्प कीप अवर स्ट्रीट्स क्लीन, ये उनका ही कहना था नगर निगम का कि वे ताकि हमारी गलियों को, सड़कों को साफ कर सकें. व्हेन वी सॉर्ट अवर ओन गार्बेज, इट रिड्यूसेस देयर वर्क. यदि हम अपने, शॉर्ट मीन्स छांटना, यदि हम अपने कूड़े को छांट लें तो यह उनके काम को आसान, यानी निगम वालों के काम को आसान बना देता है. The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to the Khala's house. The children thanked Khala. बच्चों ने
खाला को शुक्रिया कहा एंड वॉकड बैक डाउन, और फिर चले गए स्ट्रीट टुगेदर, वापस उन गलियों में एक साथ, उन सड़कों में चले गए. इट हैड बिकम क्वाइट लेट, अब थोड़ा वे देर हो गई थी उन्हें. एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, और अब उन्हें घर को जल्दी जाना था. ओके अब उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था. मीन्स कि बच्चों ने इतने सारे सवाल खाला से पूछे थे, तो उन्होंने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का शुक्रिया अदा किया, खाला को थैंक्स बोला और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े. ओके बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to the Khala's house. For some reason, okay, कुछ कारणों से, all right, कुछ कारणों से the street seemed darker than usual. Okay, तो हमेशा के मुकाबले गली में आज थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो गया था. Okay, they looked up, उन्होंने ऊपर देखा, and then looked at each other smiling, और पहले उन्होंने ऊपर को देखा आसमान की ओर और अंधेरा हो गया था. फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा. एंड ran right back to the खाला's house, और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उनको अंधेरा हो गया था और गली में अंधेरा हो गया था और स्ट्रीट लाइट टूट चुकी थी. तो उन्होंने खाला से जो मेन क्वेश्चन पूछना था कि हम लाइट टूट गई है, उसका पैसा हम किसको दें कि दोबारा से नई लाइट लगे, ये क्वेश्चन तो वो पूछना ही भूल गए थे. तो वे सब लोग फिर से खाला की तरफ, घर की तरफ को दौड़ पड़े. तो थी ना स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स. The city of Surat had a plague scare in 1994. Surat was one of the dirtiest cities in India. Houses, hotels, and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. Plague spreads through the air, and people who have the disease have to be isolated. In Surat, several people lost their lives, and over 10,000 lakh, and over 3 lakh deserted the city. The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continues to remain one of the cleanest city in India. Okay. Do you know when and how often garbage gets collected in your neighborhood? Do you think it is the same for all neighborhoods of the city? Why not discuss? Okay, so students, the city of Surat, here the descriptions about the city of Surat. Okay, the city of Surat had a plague scare in 1994. 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग रोग स्केयर हुआ था, फैला हुआ था. ओके, सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया. सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक है. ओके, वह भारत के बहुत ही गंदे शहरों में से एक शहर है. हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweeper to collect and transfer the garbage into selected dumps. Okay, तो स्टूडेंट्स लोग घरों का, ओके, घरों का, होटल का और रेस्टोरेंट का, ठीक है, घरों का और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर ही फेंक देते हैं. इससे जो वहाँ के सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कूड़ा कचरा उठाने और उसकी जगह पर फेंकने में, उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती है. ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्वीपर टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज इनटू सेलेक्टेड डम्प्स. ओके, in addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often
as it should have, and this led to the situation getting worse. Okay, so in addition to this, इसके साथ साथ ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करता, जिससे स्थिति क्या हो जाती है, और भी बदतर हो जाती है। वे डेली इस कूड़े को, इस गार्बेज को नहीं फेंकता, प्रॉपर वो ड्यूटीज़ नहीं करवाता, तो इससे कंडीशन और भी वर्स मीन्स बदतर हो जाती हैं। Plague spreads through the air and people who have the disease have to be isolated. Okay, plague जो है स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसके थ्रू फैलता है, स्प्रेड एयर के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्लेग जो है वो हवा के द्वारा फैलता है। ऑलराइट, प्लेग हवा के द्वारा फैलता है एंड पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी आइसोलेटेड, और जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से आइसोलेट करना पड़ता है, दूसरों से अलग रखना पड़ता है। In Surat, several people lost their lives and over 3 lakh deserted the city. सूरत में अनेकों लोगों ने अपना जीवन खो दिया, अपनी जान गंवाई, और करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। ओके, द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर that the municipal corporation completely cleaned up the city. Okay, the scare of the plague. Okay, और स्टूडेंट्स प्लेग ने लोगों को इतना डरा दिया, मीन्स कि प्लेग ने के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम अपने काम को ठीक से करे। ओके, क्लीन्ड अप द सिटी, और कम्प्लीटली शहर को साफ करे। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, और अब इस डर ने, इस प्लेग के डर ने सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई की, और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का स्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो आज की तारीख में स्टूडेंट्स जो चंडीगढ़ है, सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सूरत जो शहर है वो आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरे स्थान में है। ओके, डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? डू यू थिंक इट इज़ द सेम for all neighborhoods of the city? Why not discuss? Do you know, क्या आप जानते हैं when and how, कब और कैसे आपके मोहल्ले में कितने बार कूड़ा उठाया जाता है? ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार और कैसे कूड़ा उठाया जाता है? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? वाई नॉट डिस्कस? ओके, क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में भी उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं उठाया जाता? डिस्कस करिए। ओके, did you know that your taxes enable the government to provide roads, bridges, parks and street lights? List 3 more benefits that the taxes help in funding after discussing with your family. Okay, so did you know, तो क्या आप जानते थे कि सरकार जो है that your taxes enable the government to provide bridges means pull, park means park and street lights, सड़कों की बिजली या गलियों में जो बिजली होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके टैक्स से ही, मीन्स कि आपके पेरेंट्स जो इनकम टैक्स सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स जमा करते हैं या हाउस टैक्स जमा करते हैं, ओके, या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं, तो जो भी टैक्स आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स जमा करते हैं और हमारे जितने भी नागरिक जो टैक्सेस जमा करते हैं, वे उन्हीं करों के कारण ही, सरकार आपके उन्हीं करों से ही सड़क, पुल और पार्क और साथ में गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है, स्वच्छता की व्यवस्था करती है। तो अपने परिवार में लिस्ट list 3 more benefits that the taxes help in funding after discussing with your family. Okay, तो अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की, ठीक है, कर से मिलने वाले जो अन्य 3 लाभ हैं उनकी सूची बताइए। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से बात करिए, अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस करिए, और यहाँ पर दिए गए 1 2 3 स्पेस में आपको 3 बेनिफिट्स लिखने हैं, 3 लाभ लिखने हैं जो सरकार आपके पेरेंट्स के करों से जमा किए हुए टैक्सेस से करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको सेना की प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है, मेनली जो हमारी मिलिट्री है वो
भी जो मिलिट्री जो हमारे देश की रक्षा कर रही है, हम लोगों की रक्षा कर रही है, बॉर्डर्स पर वो ड्यूटी दे रही है, बॉर्डर्स पर वे हमेशा डटी रहती है कि कोई अदर देश या अदर कंट्री या कोई लोग हमारे देश पर आकर हम पर हमला ना करें, तो हमारी सुरक्षा करती है, तभी हम यहाँ पर चैन की नींद रात को सो पाते हैं। तो उसके लिए भी जो फंडिंग होती है, जो सेना को जो सैलरी पे की जाती है, गवर्नमेंट इस कार्य के लिए उनको जो सैलरी देती है वे भी हमारे टैक्स से पे होता है। जो सैनिटेशन हमारे शहरों में होता है वे भी गवर्नमेंट कैसे पे करती है, हमारे टैक्सों के द्वारा इन कार्यों को कराती है। और भी कई डेवलपमेंट के कार्य हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए व्हेन अवर स्कूल विल रीओपन देन आई विल चेक योर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार घर पे फिर से रिवीजन करिए और ट्राई करिए इसके क्वेश्चन आंसर, डिस्कस पॉइंट एंड फिलअप एक्सरसाइज को रफ कॉपी में करने का, एंड लेटर वी विल स्टार्ट अवर राइटिंग वर्क ऑफ ऑल चैप्टर्स। All right students, so tomorrow I will be back with new chapters, okay, and new chapter is rural livelihood, chapter number 8. Okay students, so now till then students, revise your work, take care, thank you very much, have a nice day.